In today's video, we are going to do a very small chapter of chemistry. This is part of the series Study of Compounds, and this chapter is nitric acid. So, in your class 10 syllabus of chemistry, there are 4 chapters in this series of Study of Compounds. All 4 are very small chapters. The first one is HCl, hydrochloric acid. Then there is ammonia, NH3. Then there is nitric acid, which we are going to study today. And then there is sulfuric acid, H2SO4. So if you're thinking that why we are not going in series, why we are not doing HCl first and then NH3, let me, let me tell you that these 4 chapters are not interrelated. They are very separate from each other, but they all have common, you can say, concepts from the chapter acids, bases, and salts. Right, we have done acids, bases, and salts in detail, and you will find the references from the chapter acids, bases, and salts in these 4 chapters. So it doesn't matter in which order you do these 4 chapters, but if you have done acids, bases, and salts, then these 4 chapters will be simple for you. Also, they are very small, they're very tiny, concise chapters. They are not very huge chapters. Formula based chapters, lot to learn, lot to remember. It's not like there are new concepts or numericals, nothing like that. Simple formula, simple information, chemical reactions which you must memorize. Yeah, certain color changes, certain tests which you must memorize. So let's start with nitric acid. You know the formula for nitric acid, right? HNO3. Relative molecular mass is 63. This is the structure of nitric acid. Okay. The acid was formerly known as aqua fortis, meaning strong water. It is so called because it reacts with nearly all metals. It can even dissolve silver, which does not dissolve in other acids. Strong water reacts with all metals, known as aqua fortis. Discovery: Glauber in 1658 obtained nitric acid by distilling niter or potassium nitrate with sulfuric acid. Lavoisier in 1776 proved that nitric acid contains oxygen. Cavendish in 1784 proved that it also contains hydrogen and nitrogen in addition to oxygen. Occurrence: in free state, nitric acid is found in rainwater where it occurs in traces after lightning. So, the nitrogen dioxide in atmosphere combines, I'm sorry, the nitrogen combines with oxygen due to lightning. And this nitrogen dioxide combines with water vapors or water droplets present in atmosphere to form nitric acid. In the combined state, that's a free state, okay? And then it comes down with the rain as acid rain. In the combined state, it is found in the form of metallic nitrates such as Chile saltpetre, NaNO3 sodium nitrate, niter, potassium nitrate, calcium nitrate, CaNO3 twice. So that's the occurrence. Formation of nitric acid in atmosphere, I just told you. During lightning discharge, nitrogen present in the atmosphere reacts with oxygen to form nitric acid. Nitric oxide is further oxidized to nitrogen dioxide. Nitric oxide is further oxidized to nitrogen dioxide. So first nitrogen dioxide is not formed, nitric oxide is formed. And then that nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen dioxide. And this nitrogen dioxide dissolves in atmospheric moisture in the presence of oxygen to give nitric acid, which is washed down by the rain and combines with the salt present
on the surface of Earth. The conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compounds in the soil is known as fixation of atmospheric nitrogen. Nitrogen fixation, a nitrogen cycle, you must have studied in geography. So as you can see, अभी तक जो चैप्टर आगे जा रहा है, इंफॉर्मेशन, मोस्टली इंफॉर्मेशन, ठीक है, आगे भी इंफॉर्मेशन ही है. देर इज नथिंग कि कहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे या कुछ सोचेंगे क्यों होता है ऐसा. ऐसे सवाल बहुत कम है इस चैप्टर में. बस इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, व्हाट. ठीक है. लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको लर्न करना है, तुम्हें याद रखना है, बिकॉज देर कैन बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द होल प्रोसेस. सो रिएक्टेंट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डिस्टिल करते हैं विथ नाइट्रेट्स ऑफ पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट. यहां पे तुम्हें कहीं तो दिखाया था ये, नहीं, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके. सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस यस यस, ग्लॉबर ने किया था डिस्टिलिंग नाइटर विथ सल्फ्यूरिक एसिड. यही चीज है जो ग्लॉबर ने एक्सपेरिमेंट किया था, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रेट्स ऑफ पोटेशियम या सोडियम के साथ हमें डिस्टिल करना है, हीट करना है. Procedure: a mixture of equal parts by weight of potassium or sodium nitrate and concentrated sulfuric acid is heated gently to 180 degrees Celsius to 200 degrees Celsius in a glass retort. एक ग्लास रिटॉर्ट है. दिस इज द ग्लास रिटॉर्ट. इसका एक ऐसा माउथ होता है, वहां से एक डिलीवरी ट्यूब होती है. सो ग्लास रिटॉर्ट के अंदर हम लोग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों में से किसी एक को हीट करते हैं to 180 to 200 degrees Celsius in a glass retort. Sulfuric acid is a non-volatile acid and produces volatile nitric acid on reacting with potassium nitrate and sodium nitrate. मतलब इससे बनता है volatile nitric acid. Volatile nitric acid is in the form of fumes. ठीक है. अब ये जो volatile nitric acid है, ये इस डिलीवरी ट्यूब से जाता है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, जहां पे अंदर वाटर होता है, और वो वाटर के साथ कंबाइन होके डिसॉल्व होके नाइट्रिक एसिड बनाता है. अच्छा, ऊपर से वाटर का एक टैप से एक वाटर का फ्लो मेंटेन करते हैं. इसलिए बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट्स पॉसिबल दैट the temperature of the contents inside this round bottom flask will be very high, and to maintain the temperature, to keep it low so that the round bottom flask is not damaged, we keep running water over the round bottom flask, running room temperature or cold water, which maintains or checks the temperature. So niter or potassium nitrate reacts with concentrated sulfuric acid at a temperature greater than smaller than 200 degrees Celsius to give potassium or sodium bisulfate plus nitric acid in the form of fumes, which gets collected in the round bottom flask and dissolves in water to give nitric acid. The vapors of nitric acid are condensed to a light yellow liquid by chilling the receiver with running cold water. I'm sorry, मैंने एक गलत चीज बोली. मैंने बोला कि यहाँ पे अंदर वाटर है जिसमें ये फ्यूम्स डिसॉल्व होती है. नहीं, ये जो फ्यूम्स है नाइट्रिक एसिड की, वो कूल होके कंडेंस हो जाती है और नाइट्रिक एसिड में लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. Pure acid is colorless, but acid obtained in the laboratory is slightly yellow. The yellow color is due to dissolution of reddish brown colored nitrogen dioxide gas in the acid. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमको. Why is the nitric acid obtained? Why is the nitric acid obtained in laboratory is slightly yellow?
although the pure acid is colorless because it is due to the reddish dissolution of reddish brown colored nitrogen dioxide gas in the acid, and this gas is produced due to thermal decomposition of a portion of nitric acid. Okay, how the yellow color of the acid is removed, that's also interesting. If dry air or carbon dioxide is bubbled through yellow acid, the letter means acid, turns colorless because it drives out nitrogen dioxide from the warm acid, which is further oxidized to nitric acid. By addition of excess of water, nitrogen dioxide gas dissolves in water and thus yellow color is removed. The reaction is reverse of the decomposition of nitric acid. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, how is the yellow color of acid removed? Why is the acid yellow in color initially? तो ये सारे क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं. ऊपर से ये जो रिएक्शंस है लेबोरेटरी प्रिपरेशन के, वो भी पूछ सकते हैं. So you have to memorize all the things, no questions asked. Chemistry में you have to memorize certain things. There are no shortcuts कि मैं बस मतलब समझ गया बस क्या हो रहा है, अब तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है. भाई याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे? ठीक है, फिजिक्स में तो समझ जाओगे एक लॉ को और एक मेथड को, एक लॉजिक को, एक प्रिंसिपल को. यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसीजर है. ठीक है, एंड ऑल प्रोसीजर्स आर यूनिक, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो यू मस्ट मेमोराइज. अच्छा, मेमोराइज मतलब तुम एग्जाम से पहले कैसे पढ़ोगे? क्या सब रट्टा मारोगे? नहीं, ये भी नहीं करना है. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. तो कंसाइज की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो तो अभी करोगे जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा. विराफ दलाल की एक्सरसाइज सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो. जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. क्योंकि क्या होगा कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के बहाने what you are doing is you are taking you are coming across those informations again and again, so that makes the whole process easy for you. समझ में आया? ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें. what are the precautions to be taken while doing this laboratory preparation? See, all glass apparatus is used because nitric acid vapors attack rubber and cork. मतलब तुम्हें कॉर्क और रबर भी यूज नहीं करना. ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड वेपर्स इतने डेंजरस है, दे कैन कोरोड रबर एंड कॉर्क, so you cannot use it. Concentrated HCl is not used in place of concentrated H2SO4 because HCl is volatile and hence nitric acid vapors will carry HCl vapors also with them. So you will get a mixture of nitric and hydrochloric acid. ये सारे reasons, give reasons में पूछेंगे तुम्हें. The temperature of the reaction should not exceed 200 degrees Celsius. Always should be below 200 degrees Celsius because sodium sulfate is formed. यहाँ पे तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है. ठीक है, अगर एक बार सोडियम सल्फेट बन गया, so it forms a hard crust which sticks to the walls of the retort and it is difficult to remove. पूरा रिटॉर्ट खराब हो जाएगा. अगर एक बार सोडियम सल्फेट बन गया तो वो चिपक जाएगा, फिर उसको निकाल नहीं सकते. ठीक है, तो it is taken care that the temperature of this whole apparatus, the heat which is given, it is always keeping the temperature below 200 degrees Celsius. Although the yield of HNO3 at higher temperature is greater, but you cannot exceed the temperature by 200 degrees Celsius. This is that reaction of production of sodium sulfate, which sticks to the walls of the container, but it's not recommended. Okay, higher temperature may damage the glass apparatus, decompose nitric acid, and can also decomposition of nitric acid can also occur, and wastage of fuel. So that's why higher temperature is not recommended. Properties of nitric acid देखो, एक तो कलरलेस लिक्विड है जब 98% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट कमर्शियल नाइट्रिक एसिड जो 68% कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है वो येलोइश ब्राउन होता है कलर में. सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी. एसिडिक है तो टेस्ट सॉरी होगा, बट ऑफ कोर्स यू शुड नॉट टेस्ट इट. हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका and fumes in air, hence bottle containing nitric acid should always be
स्टॉपर्ड, हाइग्रोस्कोपिक पता है तुम्हें, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। सो आई एम श्योर दैट यू नो व्हाट हाइग्रोस्कोपिक मींस, इसकी मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है अभी। डेंसिटी इसकी ग्रेटर देन वाटर है, 98% कॉन्सेंट्रेशन वाले नाइट्रिक एसिड की, लेकिन कमर्शियल नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी स्लाइटली लोअर होती है। बॉइलिंग पॉइंट उसका 86 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट है -42 डिग्री सेल्सियस। Aqueous solution of nitric acid with 68% concentration forms constant boiling mixture at 121 degrees Celsius. सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में तुम प्रैक्टिकल जब करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऑल्दो आई कैन शो यू वीडियो समथिंग, बट राइट नाउ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर डज नॉट हैव a great part to play in our topic, so I'm just going ahead. Solubility. It is soluble in water in all proportions. Physiological action. It is non-poisonous. It has a corrosive action on skin and causes painful blisters if it falls on the skin. It stains the skin yellow as it reacts with the protein of the skin and forms xanthoprotic acid, which when reacts with skin. Chemical properties देखो. Stability. Pure nitric acid is unstable to heat and sunlight. It decomposes to give yellow solution due to the formation of nitrogen dioxide. Thus, 100% nitric acid is not generally used due to its unstable nature. In the presence of sunlight, nitric acid decomposes even at room temperature. Nitric acid stored in a bottle turns yellow. This color is due to the dissolved nitrogen dioxide in nitric acid. To avoid the decomposition, it is normally stored in colored bottles. Question पूछ सकते हैं ना यहाँ से, why is nitric acid normally stored in colored bottles? समझ में आया तुम्हें कैसे तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है? देखो, when we are doing chapter 1 2, that is your periodic table and chemical bonding, फिर chapter 5, that is your mole concept and stoichiometry, ये सब थोड़े तो लॉजिक बेस्ड चैप्टर्स है, ठीक है। इवन मैं तो बोलूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस भी थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, some part of organic chemistry is also logic based, बट ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो वाले चैप्टर्स है, एनालिटिकल में इसको एनालिटिकल में ही मानता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनालिटिकल पार्ट है और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का मोस्ट ऑफ पार्ट, फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ये सब में तुम्हें मेमोरी का सबसे बड़ा रोल है। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज डिटेल्स, देर इज नो अदर एस्केप। फिर तुम कम मार्क्स लाओगे और बोलोगे सर मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आता। केमिस्ट्री नहीं आते आता की बात ही नहीं, तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि तुम याद नहीं कर रहे हो, तो इसको लर्न करो। Acidic properties. Nitric acid is very strong monobasic acid. It ionizes almost completely in aqueous solution to produce hydrogen ions and nitrate ions. It turns blue litmus red, methyl orange pink, and phenolphthalein remains colorless in the solution of nitric acid. It reacts with alkalis to form salt and water only. That proves that it is an acid. All metallic oxides and hydroxide react with dilute nitric acid to form their respective soluble metallic nitrates and water only. तो जो salt बनेंगे हमेशा वो nitrate salt बनेंगे, और nitrate salts हमेशा soluble होता है water में, ठीक है। So base plus acid gives salt and water, neutralization reaction. Reaction with carbonates and bicarbonates. Now this is this is just borrowed from the chapter acid, bases and salts. When any acid reacts with a carbonate or a bicarbonate, CO3 or HCO3 compound, it forms salt, that is nitrate salt in this case, water and carbon dioxide. Okay. Action with metallic sulfides and bisulfides. When nitric acid reacts with metallic sulfides and bisulfides, it forms metallic nitrate, water and sulfur dioxide, just like we studied in acid, bases and salts. Oxidizing property. Nitric acid vigorously oxidizes non-metals, मतलब नॉन मेटल्स में वो ऑक्सीजन ऐड करता है, मेटल्स में वो ऑक्सीजन ऐड करता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब में वो ऑक्सीजन ऐड करता है, तो मतलब इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. Nitric acid itself undergoes reduction to form different
reduced products, reduction products like NO, NO2, N2O. These products depend on the acid concentration and temperature of the reaction. Oxidizing properties are due to the nascent oxygen which it gives on decomposition. जब भी नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, जब भी वो डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑन decomposition oxidizes hydrogen to water. Action on non-metals. नाइट्रिक एसिड जनरली जब भी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है। इन केस ऑफ कार्बन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इन केस ऑफ सल्फर इट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड इन केस ऑफ फॉस्फोरस इट इज फॉस्फोरिक एसिड। साथ में वाटर बनाता है और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। एक्शन ऑन मेटल्स, नाइट्रिक एसिड विथ reacts with all metals except gold and platinum. गोल्ड और प्लेटिनम के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। Cold and dilute nitric acid oxidizes metals to their nitrates and liberate nitric oxide. Suppose temperature रूम टेम्परेचर है नाइट्रिक एसिड का, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिस्पेक्टिव मेटालिक नाइट्रेट्स बनाता है प्लस वाटर और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोक्साइड रिलीज करता है। Concentrated nitric acid or hot dilute nitric acid liberates nitrogen dioxide. अगर एसिड डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोक्साइड लिबरेट होता है। अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। बाकी पूरा रिएक्शन एज इट इज। Metals like iron, aluminium, cobalt and nickel become passive or inert when treated with pure concentrated nitric acid. मतलब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ insoluble metallic oxide, that is passivity, which stops the reaction. Passivity can be removed by rubbing the surface layer with sandpaper or by treating with strong reducing agents. तो अगर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, आयन, कोबाल्ट या निकल जैसे मेटल्स है तो इनसेल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड का जो लेयर है उसके ऊपर उसको रब करके निकाल देना चाहिए एंड देन इफ यू रिएक्ट इट विद नाइट्रिक एसिड इट विल रिएक्ट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड is generally considered a typical acid except for its reaction with metals since it does not liberate hydrogen. क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो भी हाइड्रोजन बनता है उसको वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। But very dilute nitric acid, 1% dilute nitric acid reacts with magnesium and manganese at room temperature. ये हमने acid basis salts में पढ़ा था और वहां पे एक क्वेश्चन भी था, why is nitric acid not considered as a typical acid? That is due to this reason. तो सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही ऐसे मेटल्स है जो वेरी डाइल्यूट, अबाउट 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट, सॉरी या दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। दैट दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट नाइट्रिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड इट इज एन एसिड। रिएक्शन एज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 वॉल्यूम। इनको जब मिक्स करेंगे तो एक्वारेजिया बनता है, मीनिंग रॉयल वाटर। ये उसका पूरा रिएक्शन है एक्वारीजिया का। एक्वारीजिया में गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव नेसेंट क्लोरीन और ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। ये NOCl है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है। एक्वारेजिया का रिएक्शन है, प्लीज लर्न करना इसको। दिस मिक्सचर reacts even with noble metals like gold and platinum to give their chlorides. Aqua regia contains nascent chlorine when attack these metals, which attack these metals. ठीक है? So that was the first part.
इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करो। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा जो क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट का, वो चेक हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आया सब कुछ, और तुम्हें याद कितना रहा। समझ में तो क्या आने वाली बात है, इंफॉर्मेशन है, बट हाँ याद कितना रहा। तो अगर तुम्हें लर्न करना है चैप्टर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, और जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने सॉल्व करो। ठीक है, चलो अभी छोटा सा पार्ट बचा है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट है चैप्टर का जो हम लोग कर लेंगे अभी खत्म। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड से शुरू करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू एच डिजाइंस ऑन कॉपर एंड ब्रास वेयर। तुमने देखा होगा कॉपर और ब्रास वेयर के वेसल्स या फिर जो वेज, फ्लावर वेज जो होते हैं, उसके ऊपर जो डिजाइंस एच्ड होती है, एच्ड मतलब उसके अंदर डिजाइन को एनग्रेव करते हैं, उसके लिए नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। सो नाइट्रिक एसिड इज बेसिकली अ सॉल्वेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स। इसके लिए जो मेटल्स है थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके ऊपर डिजाइन इजीली एच कर सकते हैं। ठीक है, टू प्यूरिफाई गोल्ड, गोल्ड में कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड इम्प्यूरिटीज होती है जो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट। In preparation of fertilizers like calcium nitrate, ammonium nitrate, nitro chalk, and basic calcium nitrate, these are all fertilizers. In preparation of aqua regia, which dissolves noble metals. Industrial uses of nitric acid are in the manufacture of explosives like TNT. TNT का मतलब है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, टीएनटी। तुमने कार्टून्स में देखा होगा टीएनटी, ब्लास्ट करते ब्लास्ट हो जाता है टीएनटी। टीएनटी एक एक्सप्लोजिव है जिसको माइनिंग में यूज करते हैं, जिसको पुराने बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, टनल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक आर्टिफिशियल सिल्क, नाइलॉन, सेल्यूलॉइड, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक फिल्म, ये सब बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स ऑफ पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, ये सब में, सबके मैन्युफैक्चर में नाइट्रिक एसिड का यूज है। टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, इसको तो ना मतलब लर्न करो भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इसको लर्न करो। टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, इससे क्वेश्चन आया, चांसेस है तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा अगर तुमने लर्न नहीं किया तो। इसको तुम लर्न करना शुरू करो, जैसे ही मैं पढ़ा देता हूँ। टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स ब्राउन फ्यूम ऑन हीटिंग। नाइट्रिक एसिड को जब हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है उसको हीट करने से ब्राउन फ्यूम निकल रही है, मतलब इसका चांसेस है कि वो नाइट्रिक एसिड होगा। नाइट्रेट्स other than potassium, sodium and ammonium nitrates produce reddish brown fume of nitrogen dioxide। वही ब्राउन फ्यूम वाला टेस्ट है। तो अगर कोई नाइट कंपाउंड है, नाइट्रेट कंपाउंड है, उसको हीट करने पे, अदर देन पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम, उसको हीट करने से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलती है जो बेसिकली होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑन एडिंग कॉपर टू नाइट्रिक एसिड और एसिडिफाइड नाइट्रेट्स, dense reddish brown of nitrogen dioxide are evolved। अगेन रेडिश ब्राउन फ्यूम वाला टेस्ट है ये। नाइट्रिक एसिड में अगर कॉपर डालेंगे या फिर एसिडिफाइड नाइट्रेट्स में, जैसे सोडियम नाइट्रेट है उसको थोड़ा एसिडिफाइड कर दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसमें कॉपर डालो, तो जो कंपाउंड मिलेगा उसके साथ तुम्हें रेडिश ब्राउन फ्यूम वाले नाइट्रिक नाइट्रिक सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। इसका मतलब है जो तुम्हारा कंपाउंड था वो था नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो ये और एक टेस्ट है। ये पूरे रिएक्शंस तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे यार। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट सुपर्ब रिएक्शन, यू मस्ट मेमोराइज द होल रिएक्शन एंड दिस होल टेस्ट। चलो प्रोसीजर क्या है, पहले एक्वेस सोल्यूशन लेना है किसी नाइट्रेट का या नाइट्रिक एसिड का, और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट डालना है। कैसे डालना है, अच्छा एक मिनट। नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रेट और आयरन सल्फेट सोल्यूशन को पहले मिक्स कर देना है एक टेस्ट ट्यूब में। अब उसके अंदर तुम्हें डालना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया पहले टेस्ट ट्यूब में क्या था, नाइट्रिक एसिड या फिर कोई नाइट्रेट
एंड आयरन 2 सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन मिक्स कर देना है। उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, केयरफुली फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो दैट इट शुड नॉट फॉल ड्रॉप वाइज इन द टेस्ट ट्यूब। ऐसा साइड से धीरे धीरे वो ट्रिकल डाउन करके उसके ऊपर वो एक लेयर बनाने लगेगा। अब इस टेस्ट ट्यूब को कूल कर रहा है वाटर में। एक ब्राउन रिंग अपीयर करेगा एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। कौन से दो लिक्विड है हमारे पास? नीचे है नाइट्रेट एंड आयरन सल्फेट सोल्यूशन या नाइट्रिक एसिड एंड आयरन सल्फेट सोल्यूशन का मिक्सचर, और उसके ऊपर है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बीच में अब बनेगा एक ब्राउन रिंग। ये ब्राउन रिंग हमें बताता है कि जो हमारा पहले वाला मिक्सचर था उसमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। क्यों बनता है ब्राउन रिंग? देखो, 6FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड बनाता है 3Fe2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। और FeSO4 प्लस NO, जो एक्सेस FeSO4 है प्लस NO गिव्स FeSO4.NO, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट विच इज अ ब्राउन कंपाउंड। इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट ऑक्सीडाइजेस टू फेरिक सल्फेट। हमें फेरिक सल्फेट नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्राउन रिंग नहीं देगा, विल नॉट गिव द ब्राउन रिंग। हमें फेरस सल्फेट चाहिए, इसलिए वी ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर इट। द ब्राउन रिंग ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट इज formed at the junction of the two liquids. The concentrated sulfuric acid being heavier settles down and the ferrous sulfate layer remains above it, resulting in the formation of brown ring at the junction. तो मतलब जो तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डाल रहे हो वो सारा नीचे चला जाता है और ये नीचे वाला लिक्विड ऊपर आ जाता है और उसके बीच में ब्राउन रिंग बन जाती है। द ब्राउन रिंग ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट डिकम्पोजेस ऑन डिस्टर्बिंग द टेस्ट ट्यूब। अगर तुम इसको जरा भी मिक्स करोगे तो ये ब्राउन रिंग डिसअपियर हो जाएगी। द हीट इवॉल्व डिकम्पोजेस द अनस्टेबल ब्राउन रिंग। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट से नाइट्रिक एसिड के सारे तुम्हें लर्न करना है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, सिर्फ इतना सा बचा है, बहुत कम पार्ट, चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। डिड आई टेल यू? देखो केमिस्ट्री का कैसा है कि देर मे बी 12 चैप्टर्स, बट सारे चैप्टर की जो लेंथ है या डिफिकल्टी लेवल है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें लगे कि अरे हमारे तो सिर्फ 5 चैप्टर हो गए केमिस्ट्री में, लेकिन वो 5 चैप्टर से 9 चैप्टर्स ऐसे ही हो जाएंगे और बचेंगे कितने? फिर 3 चैप्टर। ठीक है, तो मतलब कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे और कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे, इसीलिए अनइक्वल टाइम लगता है। तुम सोचोगे हर मंथ एक चैप्टर होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये मैं काफी पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनको लगता है कि अरे अभी तक इतना ही चैप्टर्स हुए हैं, बट इफ यू लीव इट ऑन मी ना, आई नो इट बेटर बिकॉज आई टीच इट एवरी ईयर, राइट? सो डोंट पैनिक। सिलेबस अपना बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। हाँ, सिर्फ तुम्हारी एग्जाम्स जो बीच बीच में आती है, दैट्स अ लिटिल चैलेंज फॉर अस राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, बट अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज। और अब तो वीडियोस यूट्यूब पे है तो कोई चैलेंज की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो। सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स और अल्कली मेटल नाइट्रेट्स, उनको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे या कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो दे मेल्ट इनटू कलरलेस लिक्विड्स व्हिच डीकंपोजेस ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन गैस। ये जो कलरलेस लिक्विड होता है पोटेशियम, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट का वो स्लाइटली डेलिक्वेसेंट होता है और पोटेशियम नाइट्राइट का जो सोल्यूशन है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सोल्यूशन होता है। व्हेन अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज brought near the molten liquid, it bursts into flame because of oxygen gas evolved. All other nitrates except those of silver and mercury decompose into their oxides, nitrogen dioxide and oxygen. तो हीट का इफेक्ट बता रहे नाइट्रेट्स पे। एक्सेप्ट सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट्स, सारे नाइट्रेट्स को हीट करने पे ऑक्साइड बनेगा मेटल का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट। सबके अलग अलग कलर्स हैं
और रेसिड्यू के मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड है उसके क्या कलर है वो भी दिए हैं। दीज ऑल कलर्स हैज टू बी रिमेम्बर्ड बाई। बाकी पैटर्न सब में एक ही है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट्स, दे आर वाइट कोरोसिव सॉल्ट्स, जिसकी बात हमने नहीं की अभी तक, which decompose into their respective metals, nitrogen dioxide and oxygen. क्या फर्क है? They do not decompose into their uh, respective metallic oxides. They directly decompose into the metals, nitrogen dioxide and oxygen. अमोनियम नाइट्रेट एक अलग ही कंपाउंड है जो एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज होता है और कोई रेसिड्यू नहीं लीव करता है। व्हेन इट डिकम्पोज इट एक्सप्लोड्स अमोनियम नाइट्रेट एंड गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसलिए बिकॉज it creates laughing sensation in your uh, in your body, and when you breathe it, it is also used by doctor dentists। जब डेंटल सर्जरी या फिर डेंटल प्रोसीजर करते हैं तो डेंटिस्ट यूज करते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो एनेस्थेटिक प्लस वाटर वेपर। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तुम्हें सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली बेरूत में, लेबनान बेरूत में एक एक्सप्लोजन हुआ था एंड वो वायरल हुआ था लाइक क्रेजी। मतलब उसके वीडियोस इतने डिस्टर्बिंग थे वो एक्सप्लोजन के कि अभी भी मेरे को गूजबम्स आता है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सर्च करो बेरूत एक्सप्लोजन लेबनान, लेबनान एक्सप्लोजन, तो तुम्हें दिखेगा। तो वहां पे एक डॉक था। डॉक मतलब एक एक क्या बोलूं यार, डॉक ही बोलते हैं उसको। सो ये डॉक पे एक गोडाउन था, वहां पे बहुत सारा मतलब थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो एक फर्टिलाइजर बनाने का और एक्सप्लोसिव बनाने का मटेरियल है, वो स्टोर किया गया था। और वहां पे किसी तरीके से आग लग गई और वहां पे ब्लास्ट हुआ। मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट कि पूरा सिटी बर्बाद हो गया। तो वहां पे ये अमोनियम नाइट्रेट था। ये अमोनियम नाइट्रेट में कैसे ब्लास्ट हुआ होगा अब तुम इमेजिन कर सकते हो। अमोनियम नाइट्रेट का जब ब्लास्ट हुआ ना वहां पे, ऐसा नाइट्रस ऑक्साइड बना रेडिश ब्राउन कलर का। एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन होता है, बट देर वर सम रेडिश ब्राउन फ्यूम्स सीन एट द इन द वीडियोज ऑफ द ब्लास्ट। If you see that very clearly, it is visible. So I don't know why, but ammonium nitrate was stored over there. So that was one very disturbing thing which we saw recently in the videos. Anyways, the chapter is over. नाइट्रिक एसिड का चैप्टर खत्म है। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि इफ यू वांट टू मास्टर दिस चैप्टर, यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस इन टेक्स्ट प्लस फाइनल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी तुम्हें, तभी तुम इस चैप्टर को मास्टर कर पाओगे। डोंट थिंक कि नहीं हम तो सिर्फ पढ़ लेंगे वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लीज डू द एक्सरसाइज, ठीक है, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर योर टेस्ट। Okay, so I'll see you in the next video. Bye bye.